first one is pain, then stiffness, then tingling, then numbness, degeneration, power loss, and deformity. So if you observe all kind of diseases, like in the previous slide we have seen many of the diseases, but every disease have something related to this. There could be pain or pain plus stiffness, or pain stiffness plus tingling numbness, or tingling numbness plus power loss or degeneration. So there is always a combination of all these seven symptoms. Agree? Everyone agree? Type agree in the comment box. Okay, so you really don't have to think about like so many of the disorders. Like this is what we will call it as liberty Ayurveda gives us. Like, okay, you focus on the symptoms. What are the symptoms? So whatever is the disease, there is a pain. If there is stiffness, tingling, numbness, degeneration, power loss, and deformity, then you can really approach to the spine disorder. So how to approach this disorder? Like how can we categorize all these spine disorders? First, it could be the Nanatmach Vatvadi. Like there are 80 types of Vatvadi. So Nanatmach Vatvadi, we can adjust or fit this spine disorders in that. Or in the Vatvadi Nidana Evam Chikitsa, under this category we can cover all the aspects, or the Avru So there are many of the symptoms that you can understand with the Avru with the Vata. So we will see one by one like how we can fit all these disorders in the specific Ayurveda terminology. So again, we know that Nahi Sarva Vikaranam Namatosti Dhruva Sthiti. So to start the treatment by knowing these three facts, you should know the Prakriti. That is, how is the Prakriti? How is the Adhisth? What is the Adhisthana? And what is the Samutthana? That is triggering factor. So start understanding the disease of the spine with these three factors as the Ayurveda point of view: Prakriti, Adhisthana, and the Samutthana. So there are many references related to spine disorders that I have collected together. So the what are the triggering factors are, like we know the Astivahini Dushanti in the Strotas, Astiva Strotas. So Vayamat Ati Samshobhat Asnat Ati Vigatna. So you can really see one by one, like these are the triggering factors when you go with the history of the spine patient. Again, in the Vimanstan Majjava Strotas, there are Utpeshat, Abhishandat, Abhighatat, Prapidanat. So Abhishandat is also one of the factors for the spine disorder. So always keep it in the mind. Like Abhishanda, you have to really clear the Abhishanda in the spine patient. Asti Pradosha Vikar. So when it is related with the syndesmophytes or osteophyte formation. So like when there is a formation of multiple calcium depositions around the spine, so we can correlate with this. Adjasti Danto Dantasti Vedashudam Vivarnata Keshaloma Nakashmata Dosasya Asti Pradoshaja. So Asti Pradosha Shvadi Mouse Medogatvat. So here you can see the symptoms like Danda Mushti Hatam, Saruk, Shamitam Atyartham. So अत्यर्थ श्रमिक के बाद उसको कंटिन्यूअस वेदना होता है, सरुक वेदना इज देयर, दंड मुष्टि हत की मुठ्ठियों से पीड़न जैसा उसको दर्द होता है, गुरु अंग होता है, सुत्यते लाइक देयर इज द प्रिकिंग सेंसेशन. So all these symptoms are in the Mounsa Medogat Vata. So it could be one of the diagnosis for spine disorder. Asti Majjagat Vat, again the Vedosti Parvanam Sandhi Shulam Mounsa Balakshayaha. So whenever you have to deal with the degenerative diseases or the power loss diseases, you can understand with the Mausa Balaksha, where power is less, the tone is less of the muscles. You can consider it as a Asti Majjagatvat. Aswapnaha, like he cannot, वो रात में सो ही नहीं सकता. There is like insomnia in such kind of patient. Santata Ruk, continuous vedana होती है, diffuse pain throughout the day and night.
तो एंगस्पॉन का रेफरेंस मुझे इससे कोरिलेट करने को मिला कि कफारुत वैन के सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो देर इज अ स्तंभना, स्टिफनेस होता है, दंडक दंडक जैसा वो स्तंभ हो जाता है उसमें। शोफ एंड शूलर इज देयर, शोफ एंड शूलर कैन बी कोरिलेटेड विद द इन्फ्लेमेशन एंड द पेन। गुरुनी सर्वगात्राणी, पूरा जकड़न हो जाती है पूरे बॉडी में। स्तंभनम च अस्थि पर्वणा, जो भी बॉडी में जॉइंट्स है उसमें स्तंभन आ जाता है। तो दे आर दी सिम्टम्स ऑफ कफावृत्त वैन। और उसमें चेष्टा स्तंभतः तथैव च, चेष्टा में भी वो ही कैन नॉट मूव प्रॉपरली। तो do you agree with this? Kaphavritta van symptoms can we can correlate with the ankylosing spondylitis. If you do agree, type yes in the comment box. So this is really interesting finding with the Kaphavritta van, and it gives you the clear idea of dealing with the Angstborn patient. अभी ट्रीटमेंट पार्ट में जाते हैं कि अभी हमने डायग्नोसिस विद आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव तो कर दिया। अभी इसमें चिकित्सा तत्व हमें कौन से यूज करने हैं रिलेटेड टू आयुर्वेदिक डायग्नोसिस। लाइक हमें दोनों का इंटीग्रेशन रखना है, हमें मॉडर्न डायग्नोसिस भी पता होना चाहिए, मॉडर्न ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम में आयुर्वेदिक डायग्नोसिस भी पता होना चाहिए, आयुर्वेदिक उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए। ओके, सो ऑल वी हैव टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, बट इसमें यूज ऑफ मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन ज्यादा रखना है एंड ट्रीटमेंट पार्ट आयुर्वेद में ज्यादा रखना है। तो चिकित्सा तत्व में विरेको मांस मेधस्ते निरुहा शमनानी च बाह्य अभ्यंतरगत स्नेही अस्थिमज्जागतम, जो भी अस्थिमज्जागत बात का ट्रीटमेंट बोला है तो वहां पे विरेको बोला है। विरेको मांस मेधस्ते, उसमें सॉरी मांस और मेध में विरेचन ऊर्ध्वन अधो, इससे विरेको वर्ड आया है वहां पे। निरूह और शमन चिकित्सा करनी है, और अस्थिमज्जागत हो तो बाह्य अभ्यंतर को स्नेह से पूरा नहलाना है। अस्थिश्रवणम व्याधिनां पंचकर्माणि भेषजम मत्स्य क्षीर सर्पिषि पित्तकोपथानि च। तो ये क्षीर तिक्तवस्ती हमें देनी है, पंचतिक्त क्षीरवस्ती। वक्षत्रिक स्कंदगते वाते मन्यागते तथा विरेको मर्दनम नस्यम कुशलेन प्रयोजयेत्। ठीक है, जब ये मन्यागत वात आता है वहां पे, तो वहां पे क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बोले हैं, विरेचन बोला है, मर्दन बोला है, नस्य बोला है। तो जहां जहां विरेक या विरेचन वर्ड आता है वहां पे शोधन अर्थ हमें लेना है। तो इट कुड बी आइदर वमन, विरेचन और बोथ। तो हमें यहाँ पे युक्ति से काम लेना है कि हमें यहाँ पे कौन सा कर्म करना है। स्नेहादि भी क्रिया योगे ही तथा लेपन ही अपि यांतेषु व्याधयः शांतिम तथा सम्यक शिराव्यधा। तो जब भी हमें रक्त मोक्षण करना है तो कैसे करना है, सम्यक करना है, और इसमें स्नेहन, लेपन, ये सभी चिकित्साएं उपयोगी होती है। So have you heard the word manipulation? अभी बहुत जगह पे ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज होते हैं डीलिंग विद द स्पाइन डिसऑर्डर्स, और उसमें जो भी है कि गर्दन मोड़ना या कमर मोड़ना। तो इज देयर एनी रेफरेंस ऑफ मैनिपुलेशन इन आयुर्वेदा? So if you know any reference, so put it in the comment box. लाइक वहां पे मैनिपुलेशन करके वो चीज ठीक करनी है, कि जैसे अभी हम रोड साइड वैद्य देखते हैं कि जो उनको वैद्य नहीं बोल सकते, रोड साइड जो भी आयुर्वेद के हितचिंतक हम बोल सकते हैं उनको, कि जो हड्डियां ठीक कर देते हैं या जोड़ देते हैं, अलाइनमेंट कर देते हैं। तो वहां पे योग रत्नाकर में एक रेफरेंस मिलता है, बाहोश्च परिवर्तन। जो भी अगर आपका शोल्डर जॉइंट ये हो गया है, लूज हो गया है, वहां पे डिसलोकेट हो गया है, तो वहां पे उसको कैसे ठीक करना है। तो माश तेल रसनाभ्याम दशमूल माशक वातेन जयत वैद्य अववाहुक। दिस बाहोश्च परिवर्तन कैन बी कोरिलेटेड विद द मैनिपुलेशन टर्मिनोलॉजी। ओके, तो वहां तब हमारे आयुर्वेद के साइंटिस्ट जो थे वो ये सब चीजें करते थे।
और क्या करना है? स्नेह, उपनाह, अग्निकर्म, बंधन, उन्मर्दन, स्नायु संधि अस्थि संप्राप्य कुर्यात् वायु अवतंद्रितः। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अवतंद्रितः। एतेन चिरकालम निरंतरम क्रियति दर्शयति इति डलनः। तो डलन कहते हैं कि ये निरंतर करते रहना है। तो जस्ट लाइक कुष्ठ, जो भी हमें कुष्ठ में बोला है कि हर 15 दिन बाद ये करना है वो करना है, तो सिमिलरली विद द स्पाइन पेशेंट्स यू हैव टू watch and you have to formulate the treatment protocols for the longer duration। पेशेंट को पहले ही ये आइडिया देनी है कि हम यहाँ पे आपका सर्जरी नहीं कर रहे हैं, तो इसको टाइम लगेगा और ये स्टेप वाइज अप्रोच होगा आपके ट्रीटमेंट का, तो इसको टाइम लग सकता है पूरा ठीक होने में, डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी एंड द क्रोनिसिटी ऑफ द डिसीज। और क्या क्या रेफरेंस है आयुर्वेद में? तो गृध्रसी का रेफरेंस है जो हमें सबको पता है। संधिगत वात का रेफरेंस है कि दैट कैन बी कोरिलेटेड विद द सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस वन ऑफ द फैक्टर्स इन दिस स्पाइन डिसऑर्डर। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को? तो पंचतिक्त क्षीरबस्ती, ये यूज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और ये क्यों यूज करना है? तिक्त रस तो वात का, वात को बढ़ाने वाला है, राइट? तिक्तस्य वातकृतत्वात्, अगर उसको कंटिन्यू लेते हैं तो वो वात बढ़ाएगा। इसलिए हमें इसको क्या किसके साथ संयोग करना है? तो घृत और क्षीर। तो यद द्रव्यम स्निग्धम शोषणम खरत्वम उत्पादयति तद अस्नो वर्धनम युक्तम। तो जो भी स्निग्ध द्रव्य है कि जो अस्थि को बढ़ाने में काम करेगी, खर स्वभावात् अस्ना न चैव विधम एकम द्रव्यम अस्ति यत् स्निग्धं शोषणं च तस्मात् क्षीरघृतैः तिक्तसंयुतैः बस्तिभिः तथा तिक्तसंयुतैः च उपदिष्टम् क्षीरघृतस्य तिक्तयुक्तस्य खर स्वभावतात्। तो जो भी अस्थि का खर स्वभाव है उसको ऑस्टियोपोरोसिस में ठीक करने के लिए क्षीर घृत विथ तिक्तरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अस्थि का और वात का आशय आशय संबंध है, इसलिए हमें तिक्त के साथ क्षीर और घृत देना ही है। So what are the non-surgical treatment plans are available for the spine patient? तो हम लोग बहुत बार देखते हैं कि एक कोई स्पाइन बेड आता है मार्केट में, या स्पाइन के लिए कोई चेयर आती है, या स्पाइन के लिए कोई गद्दी आती है कि इससे आपका स्पाइन का जो भी प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ ये तो हो गए कि नॉन मेडिकल अप्रोचेस, मतलब मेडिकल और पैरामेडिकल अप्रोचेस कौन से हैं? तो आयुर्वेद मेडिसिन है, पंचकर्मा है, फिजियोथेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी है, एक्सरसाइजेज है, योगा है, रिहैबिलिटेशन विद द ब्रेसेस कॉलर्स एंड ट्रैक्शन, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है। तो ये इतने सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है। अभी इसमें से जो भी हमने सिम्टम्स सब देखे हैं कि इफ देयर इज अ पेन, इफ देयर इज स्टिफनेस, स्टेनोसिस, इन्फ्लेमेशन, रेडिकुलोपैथी, माइलोपैथी, ये सब सिम्टम एक जगह पर है। हमारे जो भी हमने चिकित्सा तत्व देखे हैं कि विरेचन है, नस्य है, स्नेहन है, स्वेदन है, रक्तमुक्षण है, वमन है, नस्य है, ये सब इनका कोरिलेशन कैसे करें, कि एक दूसरे के साथ इनको कैसे कोऑर्डिनेट करें। बट बिफोर दैट, इट पेन के लिए थोड़ा सा कि पेन एग्जैक्टली क्या होता है और वो क्यों होता है। तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ विविधम सुख दुखानाम वेदनानाम प्रवर्तकाः और वेदनानाम अधिष्ठानम मनोदेहश्च इंद्रियाः, मन और देह। दैट्स व्हाई द काउंसलिंग प्लस कंसल्टिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द पेन। सो एवरीवन, आर यू अवेयर अबाउट दिस गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ द पेन? तो इसमें हम एक समझा सकते हैं कि आयुर्वेदिक स्नेह कैसे काम करता है रिलीविंग द पेन। ओके, सो जब भी, so how the pain occurs? So when there is a pain, so there is a signal comes from the back, then there are A delta nerve fibers and there are C fibers. If it is a quick and intense pain, these A delta nerve fibers get activated. It goes to the lamina, then it crosses the lamina, crosses the spinal cord, reaches to the brain, and you suffer with the severe quick intense pain. But if there is a throbbing or chronic pain, then the C fibers get activated.
it crosses the lamina, crosses the spinal cord, and then it reaches to the brain. ओके, सो जो भी हम स्नेहन करते हैं और तेल धारा करते हैं, तो इसका फर्क आपको समझेगा। जब भी ये ए डेल्टा नाउ फाइबर्स जो रहते हैं, ये सुपरफिशियल सिचुएटेड रहते हैं स्किन के नीचे, और थोड़ा सा डीप अगर जाते हैं तो सी फाइबर्स रहते हैं। तो जब भी ये फाइबर्स एग्रीवेट होते हैं तो पेन महसूस होता है, लेकिन इनको डिमिनिश करने के लिए हम अगर स्नेहन और तेल धारा का यूज करते हैं तो इन फाइबर्स को और या इस पेन को हम कम कर सकते हैं। सो लाइक वी आर diminishing the aggravations of this A delta no fiber or C fibers. तो कितने टाइप्स के पेन रहते हैं? सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पेन लाइक नोसिसेप्टिव एंड न्यूरोपैथिक। दोनों में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है, और हर एक के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, ये भी ध्यान में रखिए। लाइक हर एक पेन के लिए हम एक ही चिकित्सा करेंगे तो उसको काम नहीं करेगा, कि कौन से पेन में कौन सा ट्रीटमेंट करना है ये हमें पता होना चाहिए। So this pain rating scale is very important. Like ये आपके ओपीडी में रहना ही चाहिए। जब भी पेशेंट बोलता है सर मुझे यहाँ पे दुखता है, तुरंत उसके सामने ये पेन स्केल निकालो, या आपके ओपीडी शीट में, एग्जामिनेशन शीट में, केस पेपर में इसको ऐड करो। तो इसमें से आपको ये पेन स्केल जो है, जो वोंग एंड बेकर फेसिस का पेन स्केल, दैट इज वेरी फेमस। तो इसमें पेशेंट को हमें एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेन इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट। पेन पेशेंट टू पेशेंट वैरी होता है। पेशेंट का बल कितना है, उसका तत्व कितना है, उसका प्रकृति कौन सा है, उसके ऊपर उसका पेन पूरा वैरी होता है। तो हमें ये पेन चार्ट देख के उसका पेन अंडरस्टैंड करना है कि वो कितना सीवियर पेन है। या फिर जो नीचे का है ब्रीफ पेन इन्वेंटरी, यहाँ पे उसको जो भी पार्ट में सबसे ज्यादा पेन हो रहा है उसको उधर क्रॉस मार्क करना है। तो ये क्रॉस मार्क करने से हमें पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ हो रहा है। देन वी कैन really differentiate the radiating pain. If it is radiating then we can differentiate। वो बोलेगा हाँ, मतलब कुछ कुछ पेन जो है वो बटक से स्टार्ट करेगा और थाई तक एंड करेगा, ओके, और कुछ पेन जो है वो बटक से स्टार्ट करेगा तो नीचे तक एंड करेगा। तो वी कैन डिफरेंशिएट वेदर इट इज disc prolapse or some other pathology। Okay, so yesterday we have seen like if there is the space reduced in the lamina or the spinous processes, then the pain is only till the thigh region। ओके, तो बस उसके पेन मार्किंग से हमें ये पता चल सकता है कि ये कौन सा डिसीज से सफरिंग है। सो आफ्टर डीप डिगिंग इन आयुर्वेदा कंपेंडियम्स, और सब संहिता में सब कुछ स्टडी करके इन सब का कोरिलेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ये सब करके, then I have formulated, like taking the help of other integrated patches also, this AYPP protocol। So what are these protocols? A stands for Ayurvedic medicines and the Panchakarma, Y stands for yoga, P stands for physiotherapy or electrotherapy specifically, and the next P stands for the posture corrections or ergonomics। So these AYPP protocols really helps to manage the spine patients, and I'm effectively doing these, researching these and practicing this since last 8 years in my clinical practice। तो इसमें हमें सबसे पहले दो चीजों में डिफरेंशिएट करना है। एक व्याधि अवस्था, वेदर इट इज साम और निराम, एंड रुग्ण बल, प्रवर मध्यम अवर। अगर ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में फिट है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट प्रवर रहता है, उसका रुग्ण बल प्रवर रहता है, और उसका डिसीज सीवियर रहता है लेकिन वो पेन टॉलरेट कर सकता है, तो वहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका बल प्रवर है लेकिन डिसीज सीवियर है। तो हमें उसको ये समझाना है, भले ही आपको पेन कम है लेकिन आपके जो भी बॉडी में ये डिसीज है ये बहुत एग्रीवेट हो रहा है, तो उसको सीवियर क्रोनिक ट्रीटमेंट आपको लगने वाला है। या बहुत बार अवर पेशेंट जो है अवर बल का, उसको बहुत सिंपल डिसीज रहता है, और अगर हम उसको यही एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कुछ नहीं है, बस आपको ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, तो बोलेगा नहीं सर मुझे पंचकर्म क्यों नहीं कर रहे, यू नो। तो आपको ये रियली कंसल्टिंग एंड काउंसिलिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो जो भी हमने पहले सिम्टम्स देखे थे, नाउ उसमें यहाँ पे कोरिलेट करना है। तो फोर आर मेन सिम्टम्स: पेन, स्टिफनेस, रेडिकुलोपैथी,
and myelopathy. Okay, so ये किस किस में होता है? तो अगर मॉडर्न डायग्नोसिस देखा जाए तो नेक पेन होता है इंजुरी, ट्रॉमा और स्पाज्म में। नेक पेन प्लस नेक स्टिफनेस अगर है तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और फैसेट जॉइंट अर्थराइटिस, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक पेन है, भी है और रेड भी है। रेडिकुलोपैथी मींस tingling numbness in shoulder and hands. So it could be cervical spondylosis, disc bulge, facet joint arthritis, or degenerative disc. So they are the possibilities. If there is neck pain, neck stiffness, tingling numbness, and weakness and spasticity in the upper extremities, which is called as a myelopathy. तो अगर ये सब सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं आफ्टर थरो क्लिनिकल examinations and radiological examinations, so then you can reach the diagnosis any one of these. It could be tumor, or it could be syngomalia, or it could be narrowing of the spinal canal, or disc herniation with the sequestration. So this is very important. That's why I'm again and again telling you the examination is very, very important while reaching to the pinpoint diagnosis. Like if you can reach to the diagnosis, the treatment is very easy. तो नेक पेन के लिए हमारे शास्त्र में क्या वर्ड है? तो मन्याशूल है। तो इसमें हमें क्या करना है? अगर केवल निरुपस्तंभित वातज चिकित्सा करनी है, ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर दैट इज नेक पेन, तो यहाँ पे हमें मन्याशूल पकड़ के मन्या स्नेहन देना है, मन्या बस्ती देना है और नाड़ी स्वेद देना है, ठीक है। और एट द सेम टाइम हमें अगर रक्त दृष्टि लग रही है वहां पे, लाइक इफ रक्त दृष्टि के लक्षण आप पढ़ सकते हैं, तो उधर इंफ्लेमेशन या फिर कुछ भी रक्त दृष्टि के सिम्टम्स आपको दिख रहे, तो वहां पे विद्य कर्म करना है और निराम अवस्था में अग्नि कर्म करना है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारा होना चाहिए फॉर मन्याशूल। इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं हम फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड करके एक ट्रीटमेंट रहता है, तो उसमें हर्बल लिनीमेंट, लाइक यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ जेल, और यू कैन यूज नारायण तेल, महानारायण तेल, just to apply on the body, and with the ultrasound waves it reaches to the muscular part and helps to relieve the spasm. मन्याशूल में हमें भुजंगासन इज रियली हेल्पफुल। इसमें पोस्चर और रिहैब क्या करना है हमें? तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and rest and the neck movement 4 to 5 times. After rest, there is a neck movement, and then the cervical pillow we can advise. Flat hard bed should be advised. तो इसमें हम मन्याशूल हमें अगर स्पाज्मोटिक लग रहा है खाली, तो उसमें इस ट्रीटमेंट से फायदा हो सकता है। if there is neck pain plus neck stiffness, मन्याशूल प्लस मन्याग्रह अगर है, तो ये उपस्तंभित वात चिकित्सा यहाँ पे हमें करनी है। तो वृक्षपत्र पोटली और चूर्ण पोटली, मन्या स्नेहन, मन्या बस्ती। तो पहले वृक्षपत्र पोटली से हमें आम को वहां से निकालना है, और उसके बाद में हमें मन्या स्नेहन करना है, फिर मन्या बस्ती देनी है और नाड़ी स्वेद देना है। सो हियर आवर टारगेट इज टू रीच टू दी डेल्टा फाइबर, ए डेल्टा फाइबर ओनली। तो हमें यहाँ पे नाड़ी स्वेद देके विद्ध और अग्निकर्म की जरूरत हो तो वो करना है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड with TENS if it is required, or only ultrasound is advisable. भुजंगासन एंड मार्जारासन हम पेशेंट्स को बोलते हैं, लेकिन ये योग कब बोलते हैं कि फॉर द मेंटेनेंस पर्पस, लाइक पहले ही दिन ये सब चीजें नहीं करनी है, यू हैव टू गो द स्टेप बाय स्टेप। उसमें सिटिंग्स हम बोलते हैं कि ये कब करना है, वो कब करना है, तो उसके प्रोटोकॉल्स हमने ये सब डिजाइन किए हुए आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च एंड द क्लिनिकल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। So with that protocols, we advise to go with the um, this physiotherapy, yoga, and posture content. So you will come to know about TENS in the later part. It is an electrotherapy. It is an instrument, TENS instrument. What is the third stage? That is the manya shul. That is सतताम चरूप। मन्या शूल है लेकिन सतताम चरूप सिम्टम है, मन्याग्रह है, चिमचिमायन है और गात्र सुप्तता है। तो देखिए आयुर्वेद का इट्स अ ग्लोरी ऑफ आयुर्वेदा कि इसमें टिंगलिंग नमनेस का भी रेफरेंसेस हमें मिलता है। द वर्ड चिमचिमायन एंड गात्र सुप्तता इज देयर। तो इसमें हमें उपस्तंभित और निरुपस्तंभित दोनों ही वात की चिकित्सा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें पंचकर्मों को इंट्रोड्यूस करना है, उसमें विरेचन हमें देना है,
देन वृक्षपत्र पुट्टली चूर्ण पुट्टली मन्यात धारा यहाँ पे लानी है हमें, when you have to go